الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيम। हाँ बिल्कुल। जो ऑफिसर आए हुए हैं वो अपना तारुफ करा दें। Bismillahirrahmanirrahim. Sir, my name is Amjad Shoaib Khan. I'm member IT and Development Board of Revenue Punjab. I'm appearing on behalf of SMBR Saab. Sir, SMBR Saab is on ex-Pakistan official tour and he's not here. Sir, एक Are you in capacity to answer as the principal accounting officer? Yes, sir. Have you been authorized for that? Yes, sir, I have There been is always an authorization that on behalf of a person is different thing. I can also sit on that chair, but I don't have the authority to make any decision. Whatever the decisions are, you have to convey. The principal accounting officer is supposed to be in person, present in person. And if he's not there, you can send even the Tahsildar for that. This is not the proper, this is the proper highest forum, accountability forum. And he may be on leave, but you should have been authorized on behalf that you have all the authorities and notification should have been issued that you will be acting on his behalf as a principal accounting officer. This is what I have known. Better is the Honorable Finance Department can tell that. जी सर वो very right, sir. I have been directed to appear and take your directions whatsoever. ठीक ठीक है बाकी मेंबर जी सर मोहम्मद शाहरुख नियाजी सेक्रेटरी कॉलोनीज ऑन द बिहाफ ऑफ कॉलोनीज डिपार्टमेंट। Qamar Abbas, Consultant Colonies Department. Sir Khalid Tipu, I am Secretary Taxes Punjab Board of Revenue. Sir Faryal Maksi, Director Punjab Audit. शेख नदीम अमजद डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब। सर अब्दुल समद एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। SMBR साहब की कोई एक्स पाकिस्तान की कोई लीव की रिक्वेस्ट आई हुई थी आपके पास? हमारे पास कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं है कि SMBR साहब बाहर गए हुए हैं। ही शुड हैव बीन गिवन हिज लीव इन राइटिंग। पहले वो हमें राइटिंग में दे देते हैं। बाकी सेक्रेटरीज जो हैं अगर कहीं बाहर होते हैं तो वो अगर PAC की मीटिंग हो तो ही दे अपनी वो लीव जो है वो सेंड कर देते हैं। Sir, although I have been directed, we will provide it. आज ही दे देंगे सर, आज ही दे देंगे। Who has directed you? Sir, Who has directed you to appear here? sir, I have been directed by SMBR साहब Nabil Javed साहब to appear over. नबील जावेद साहब किधर गए हुए हैं? What authority he has to direct somebody to appear on his behalf? This is ये कोई नहीं है कि this is the again I repeat, this is the highest forum. The principal accounting officer under the relevant law should be present in person to answer it. Let's say I say to this honorable member sitting, can he act on my behalf? Sir, I am the member. Sir, I will Can I provide. authorize my staff officer to go and appear in the house and speak there? मैडम आप ले लीजिएगा उनसे तो हम we will provide it, sir. We will provide कर it. लेते हैं इसको कर लेते हैं। Sir, किधर गए हुए हैं नबील जावेद साहब? सर US गए हैं ऑफिशियल टूर पे। वापस कब आएंगे? सर 17th को आना है उन्होंने। चले ठीक। ऑडिट अच्छा राणा साहब हैज टू स्पीक से समथिंग। Member Sahab, I have a very important issue. I had moved an adjournment motion 256/24 way back for 10 months back. और just like your department उसने ऐसे करते रहे, the matter was referred to the ministerial committee and was referred to the standing committee, the revenue. And your honorable member there made an assurance that they will probe into the issue. कौन सा?
they'll probe into the issue and get back. But we didn't get a reply for about 7 months. Then again moved to the speaker, and a meeting was convened, and your department said we are not available on that day even. But now I have received a reply in which I would like to mention what have they written is, the answer is just one. The probe officer has concluded and recommended that the case was of a mala fide intention. The Patwari who entered mutation, Gardawar who checked mutation, revenue officer who passed the mutation are liable to be held responsible. Usse likha the matter needs further inquiry. What further inquiry is needed? When you have already conducted the inquiry, you have found that आपने High Court के decision को किया है. और again उसमें एक और लिखते हैं एक चीज़ कि मैंने कहा था illegal possession of plots in that area. ये लिखते हैं कि as per available record, Galla Mandi, the land is in ownership of private owners. So that is not under private ownership, that is a state land, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ज़मीन बच्चे होती गवर्नमेंट दी, वो ज़मीन पड़ी है, illegal occupants वहाँ पे है, और उसको भी आपने गलत लिखा है. Providing a wrong information to the house amounts to breach of privilege, and that can be proceeded as a contempt of these proceedings also. तो मेरा ये है कि kindly आप ये इसको ज़रा probe in कर लें, probe in पे आप कर लिया, inquiry पे ये ना हो कि आप 8 माह फिर और इंतज़ार करते रहें तो फिर आ जाएगा. तो I should not take this matter again back to the assembly. तो ये है कि आपकी एक मीटिंग आती नहीं है, जब आ जाए तो उसकी रिप्लाई बड़ी वेग सी आती है, और you have yourself admitted कि this is a mala fide सब कुछ है, तो why don't you take action against them? ये आपके नोटिस में है? जी सर, मेरे पास सेक्रेटरी कॉलोनीज हैं, ही इज़ वेल कन्वर्सेंट विद इट, लेकिन SMBR साहब इसके ऊपर ही वाज वर्किंग ऑन दैट. सेक्रेटरी कॉलोनीज मस्ट बी वेल वर्स्ड पर्सन. मेरा ये नहीं, आई एम आस्किंग यू, यू आर द हेड ऑफ द डेफ सर. तो आप मुझे ये बताएं कि इसका आउटकम क्या है. एक मेरी रेजोल्यूशन पे जो ये जनरल मोशन पे इट टुक मी 10 months to get into it. The answer is still 0. नेक्स्ट सेशन से पहले इंशाल्लाह ताला इसको सेशन इज टुमारो, कंक्लूड कर लेंगे सर. आज भी सेशन है सर, वो नेक्स्ट सेशन जो भी होगा, या हमें कोई टाइम बता दे सर, उसमें हम you have to give the time कि how much time you needed. प्रोब तो अगले सेशन है, इन द बजट सेशन यू कांट टेक दीस थिंग्स, उसमें आता नहीं है. 17th को SMBR साहब आ जाएंगे तो हम इंशाल्लाह ताला फोर्टनाइट के अंदर इसको कंक्लूड कर लेंगे. इसको this should be brought in the minutes that the honorable the member has made an assurance that the decision will be made within within 1 fortnight after the arrival of SMBR. Noted. Audit? जी, खान साहब. पिछली जो लाइफ स्टॉक की मीटिंग हुई थी उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पे एक लीज की गई ज़मीन को, वहाँ पे दरख्त थे, करोड़ हा के दरख्त थे, उनको जो है ना वो काट के बगैर किसी भी प्रोसीजर के, किसी ठेके के, बिडिंग के वो काट के ले गए. फॉरेस्ट वाले कह रहे थे वो हमारी नहीं है, वो सरकार की नहीं. वो लाइफ स्टॉक वालों ने कहा कि जो अब हमारे पास नहीं है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वो अपने पास ले लिया और आगे उसको लीज आउट कर दिया. तो वो आज ये सारे रेवेन्यू बोर्ड वाले बैठे हैं. वो हम इस तरह कर लेते हैं, जब उसके मिनट्स हम फाइनल करते हैं ना, तब उसके बाद हम इनको क्वेरी डाल देंगे. इसको फिर क्या सर? उसके बाद हम इनको क्वेरी डाल सकेंगे ना कि हमारा ये मैटर था, ये इशू है, मेंबर ने ब्रॉट अप किया, आप इसके ऊपर जवाब दे दें. चलें, जैसे आप मुनासिब उस तरह कर लें, क्योंकि अभी इनको ये प्रिपेयर नहीं होंगे उसके लिए. ठीक है, ऐसे कर दें सर. लेकिन उसमें भी आपने कहा था सर, उसमें आपने कहा था कि एक इसकी कमेटी बनाई जाएगी, इसकी भी, और वहाँ पे जो पट्टेदारों का इशू है उसकी भी कमेटी बनाई जाएगी. उस पर कोई कमेटी नहीं बनी, कोई उस पर नहीं. कमेटी हमने बना दी है. उसके जो मिनट्स हैं वो उसके बाद ही कमेटी फंक्शन होगी. आज ही मैं इसके मिनट्स साइन करूँगा. ठीक है. और ये दरख्तों वाला सर, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, ये इसको हमने टेकअप करना है. ठीक. और कंप्लायंस की मीटिंग भी हर 3 महीने बाद हो रही है. ठीक है. तो 19 को कंप्लायंस की जो मीटिंग होगी, उसके बाद हम फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट को भी ऑन बोर्ड लेके डिपार्टमेंट से फिर ले लेंगे. ठीक. लाइफ स्टॉक की. थैंक यू. हमारी गालबन ऑडिट ये जो पहला पैरा है 21.4.9. जी सर. ये वही है जो स्पोर्ट्स बोर्ड वाला हमने पहले एक मीटिंग की थी 19 सितंबर को. जी सर, वही पैरा आपकी डायरेक्शन थी, इसको ट्रांसफर कर दिया जाए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. ठीक है. तो हमने सर इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ट्रांसफर कर दिया था. पैरा आपने कब किया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को? सर हमने फरवरी में ट्रांसफर किया था.
फरवरी, नवंबर में भी गॉट द मिनट्स। 3-4 महीने हो गए इसको। जी जी, हमें दूसरे महीने किया था सर हमने। मिनट्स कब मिले थे आपको? सर हमें मिले थे नवंबर में मिनट्स मिले थे, तो उसके बाद प्रोसीड करके हमने फरवरी में ट्रांसफ़र किया। 18 अक्टूबर को हमने मिनट फाइनल किए थे, बट ओके आपको लेट मिला होगा, पर ये आपके एंड के ऊपर भी डिले आया है। सर वो डिप्टी ऑडिटर जनरल से भी अप्रूवल लेनी होती है, वो सारी प्रोसेस करके आइंदा बेहतर कर लेंगे। सो दे हैव इट विद देम फॉर द पास्ट 5 मंथ्स। जी सर, ये जो पैरा है, पैरा नंबर 1, आप पैरा पढ़ दें ऑडिट। सर ये पैरा है सर, इलीगल एंक्रोचमेंट ऑफ 19.5 कनाल लैंड वैल्यू 97.5 मिलियन एंड लॉस ऑफ 14.157 मिलियन सर। सर इसमें ये लीज एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड पीसीबी इन 1995, और उसमें कुछ शॉप्स को लीज आउट किया गया था। और इसमें सर ये एग्रीमेंट का क्लॉज 3 था कि जो शॉप की लीज आउट की अमाउंट होगी उसका 20% जमा कराया जाएगा कॉलोनी डिपार्टमेंट को। इस साइड पे सर ये जमा भी नहीं कराया गया, और उसके साथ जो शॉप्स थी सर उन्होंने इलीगल इंक्रोचमेंट कर ली सर। 12 शॉप्स थी जिन्होंने, किसी ने 1 कनाल की इंक्रोचमेंट की, किसी ने 10 मरले की, और टोटल 19.5 कनाल की इंक्रोचमेंट होगी सर। और वो उसको इंक्रोचमेंट छुड़ाया भी नहीं। स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये प्ली ली थी कि उनसे मैटर पर्टेन नहीं करता, क्योंकि लीज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कलेक्टर ने और इसमें पीसीबी ने। तो इस पे आपकी डायरेक्शन सर आई कलेक्टर ने जी। और जो वेंडर्स है उनकी लिस्ट भी वर्किंग पेपर में नहीं है अवेलेबल। जी सर, वो मेरे पास अवेलेबल है सर, वो आप मुझे अलग से दिखा देंगे। जी सर। इसमें सर 13 वेंडर्स हैं सर। 13 वेंडर्स हैं? जी जी, केटरिंग हैं सर, कुछ ढाबे हैं, ठीक है, कुछ ग्रिल्स हैं, और दीवाने खास वगैरह, मधु खान, ये लोग हैं जिन्होंने इसको रिस्पॉन्ड कौन करेगा? डीसी लाहौर का साफ करेंगे? जी सर, बी और सर ये हमारे पास ADCR लाहौर भी मौजूद हैं। ही विल एक्सप्लेन अबाउट रिकवरी मेड इन दिस रिगार्ड। और 2014 के बाद जब ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को चली गई थी तो एक सबमिशन करते हैं सर, सेक्रेटरी कॉलोनीज हैज़ बीन हैंडलिंग दिस इशू, ही इज़ वेल कन्वर्सेंट विद दिस। सर इसमें सर इशू ये था कि जब 1996 का वर्ल्ड कप हो रहा था तो उससे पहले इस जगह का प्रॉपर पोजेशन लिया गया पंजाब गवर्नमेंट ने, और एक लीज डीड साइन होती है 1995 के अंदर 180 कनाल के अंदर। वो लीज डीड जो साइन होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दरमियान, और उसकी क्लास 2 जो ये होती है कि ये जितना रकबा है 1000 पे, 180 कनाल जो है ये 1000 रुपये पे, और जो क्लास 3 है उसके अंदर ये है कि जो भी इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी होगी उसका 20% बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दिया जाएगा। तो पहली जो बात की इंक्रोचमेंट वाली और कमर्शियल एक्टिविटी वाली, वो यहीं से नेगेट हो जाती है कि क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन के अंदर हमने डाला हुआ था कि भाई 20% अगर वो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, रकबे का हमने नहीं बताया था, हमने पूरा 180 कनाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दिया था। ठीक है, तो यूं बात चलती गई सर। 2000 वो 1 मिनट, वो 20% आपको कलेक्ट करके पीसीबी ने देना है? सर पीसीबी ने देना था हमें, और हमारा उसके अंदर जो कस्टोडियन होता है, जो भी हमारे पैसे जमा करता है, वो करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके। अब सर होता ये है कि 2006 के अंदर ये चीज़ आती है कि भाई ये पैसे शैसे जमा नहीं करवा रहे, तो उस पर सर सही सफदर जो है तुम्हारे मेंबर होते हैं और एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी के कितना पैसा इनका बनता है सारा कुछ है, उसके अंदर सर कॉलोनीज डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नुमाइंदा और स्पोर्ट्स बोर्ड का और एक फाइनेंस का नुमाइंदा रखा जाता है, और डिटरमिन किया जाता है कि ये जो कमर्शियल एक्टिविटी है इनके पैसे कितने बचते हैं। जो उस टाइम हमारे डायरेक्टर ऑडिट थे वो आज हमारे साथ मेंबर कंसल्टेंट है, ये उसका हिस्सा था। तो 2009 के अंदर इन्होंने उनके पैसे निकाले, 1 करोड़ 96 लाख रुपया ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का शेयर बनता है। ओके, ठीक हो गया सर। अब ये इसका एक पहला फेज है। अब दूसरा इसका फेस ये होता है कि 2011 के अंदर ये सर जो पूरा आपने देखा हुआ है कदाफी स्टेडियम, हम बात कर रहे हैं 180 की, तो उसके अंदर हमें बड़ी कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं कि किसी ने इसके अंदर भाई नर्सरियां बनाई हुई है, सर आपने खुद देखा होगा। तो ये तमाम रकबा जो है उस टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट जो है वाइब्रेंट हो जाता है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो 2011 के अंदर हम 2 इंतकालात करते हैं, और इसका जो पूरा रकबा है 1177 कनाल, ये तमाम हम स्पोर्ट्स बोर्ड को दे देते हैं। ठीक हो गया सर। और उसके बाद हम इस इशू को, ये जो हम सैंक्शंस करते हैं सीएम की अप्रूवल से, और 2013 के आखिरी दिसंबर के अंदर हम कह देते हैं कि आज से ये जो सारी जगह है इसका कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बजाय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होगा। ओके, ठीक है। अब सर पहली बात आ गई पैसों वाली। 2013 में, 13 के आखिर में, दिसंबर का महीना था, हमने सैंक्शन जारी कर दी।
आपने ये सब्सटेंशिएट भी करना है विद एविडेंस। जी सर बिल्कुल, ये जो इनकी अपनी समरी है उसके अंदर पूरा लगा हुए हैं फैक्ट्स, जो समरी फॉर चीफ मिनिस्टर अभी हुई है और ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने खुद मूव की हुई है। ठीक है, कैरी ऑन। तो वो सारी जितनी बातें हैं सारी ये मैं डॉक्यूमेंट्स कोजेंट corroborated एविडेंस के साथ जो भी बात करूंगा। अब सर बात आ जाती है 2013 तक के पैसों की। तो 2013 तक का जो हमारा अपना वेरीफाइड फिगर जो हमने प्रॉपर किया था वो था 1,96,00,000 रुपया। अब सर जो 2013 तक प्रॉपर पैसे हैं, ये दोनों चलान मेरे पास मौजूद हैं। 2,76,00,000 हम कर चुके हैं। ADCR साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे भट्ट साहब, तो उनको मैंने कहा है कि फिर भी इसको वेरीफाई करवा लो। 2013 तक 2013 आपके कहने का मतलब है कि 2013 के बाद वो स्पोर्ट्स बोर्ड को आपने हवाले कर दिया, क्योंकि सर 2011 के अंदर हमने इंतकाल करके पूरी 1177 कनाल ही जगह उनको दे दी, क्योंकि उसके अंदर और काफ़ी इशूज़ आ रहे थे और उनको कस्टोडियन मुकर्रर कर दिया। अब सर यहाँ पे जो थोड़ा सा एक इशू आया है, इशू तो नहीं बट इसमें समझने में था कि 2014 से लेके जो बात हमें कन्फेस करनी चाहिए, जो हमारा फॉल्ट है, जो गलती है, वो ये है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने 2023 तक इसके अंदर कोई पैसा नहीं जमा करवाया। अब पैसा नहीं तो चूंकि 2023 के अंदर मैं खुद आया तो नबील जवेद साहब ने, हमने इनसे 5 मीटिंग्स की। पहला सर 2023 के अंदर इन्होंने हमें नोट लिखा कि आप जो है ये स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन जो है इनकी क्लॉज को अमेंड करें। तो हमने बता दिया कि हमने लेटर ऑलरेडी लिख दी है, ये क्लॉज अमेंड हो चुकी है विद द अप्रूवल ऑफ CM, हमने आपको कस्टोडियन मुकर्रर कर दी है। विद द अप्रूवल ऑफ कस्टोडियन हमने DC की जगह पे आपको मुकर्रर कर दिया। तो उनके साथ हमारी 5 मीटिंग्स हुई हैं। ये उनके अपनी जो समरी फॉर चीफ मिनिस्टर है उनके अंदर तमाम बातें रिटर्न है कि 5 मीटिंग्स, तो वो इशू इनका जो है प्रॉपर सेटल है। अब सिर्फ ये इन्फोर्समेंट की बात आ रही है जो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम क्यों पैसा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ये नहीं ले रहा। अब हुआ क्या, जो वो प्ली ले रहे हैं, प्ली ये लिखे। एक सेकंड न्याजी साहब, आपने जो एग्रीमेंट जो आपने हैंड ओवर किया है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, उसमें भी आपने कोई उनको बाउंड किया था कि कुछ पैसे आप लेंगे? जी सर, उसमें ये मैं आपको पढ़ देता हूँ। हमारा लेटर है 229/13 कॉलोनीज डिपार्टमेंट डेटेड 5/12/2023। ये इनकी अपनी समरी के अंदर एनेक्सर V पे लगा हुआ है, तो जिसके अंदर सर मैं लास्ट पॉइंट पढ़ देता हूँ। द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट शेल कलेक्ट द लीज रेंट मनी ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड शेल डिपॉजिट एंटायर अमाउंट इनटू द रेलेवेंट हेड ऑफ अकाउंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज। 100%। जी सर, अब ये सर 32A का चलान एक ही है, वो प्रोविंशियल का चलान है, वहाँ जाना है। ये अपनी समरी के अंदर लिख रहे हैं। अब इन्होंने सर उसके बाद इनके कुछ और इश्यूज भी थे। कुछ और इनके इश्यूज ये थे कि अब 180 के अलावा हम देखते हैं कि जिस टाइम मुशर्रफ पीरियड आता है तो वहाँ पे एक नेशनल अकेडमी बनती है जो 41 कनाल के ऊपर होती है। अब हमारा कानून ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को जब भी हम देंगे तो हम कमर्शियल पर्पस के लिए देंगे। तो अब सब इन तमाम इश्यूज को जो 177 के अंदर कुछ उनके 10-11 इश्यूज और भी आते हैं कि किसी जगह पे किसी और डिपार्टमेंट का था, किसी जगह हमने कुछ और चैरिटेबल के लिए दी थी, उनके कुछ 10-12 इश्यूज है। उन सब की एक समरी लेके और जो उन्होंने अब PCB के साथ MOU करना है, इंक्लूडिंग जो 41 कनाल और जगह PCB ने ली है जो इस MOU के अंदर नहीं थी, तो उसको लेके वो कैबिनेट के अंदर गए। 2024 के अंदर समरी फॉर चीफ मिनिस्टर मूव हुई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें हमने भी उनकी प्रपोजल्स को एंडोर्स किया। और ये अब होते हुए इस टाइम जो केस है वो लॉ डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है। लेकिन इसके पड़े होने से ये बिल्कुल बात ये नहीं है कि हम वो रिकवरी ना करें, तो वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल रिकवरी 2014 से लेके 2025 तक 20% करनी है। और इस टाइम पोजीशन ये है कि तमाम दुकानें जो है वो गिरा दी गई हैं कि अगर हम उस प्ली पे जाएं कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट थी या वो कमर्शियल पर्पस स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस की वायलेशन। एक मिनट पहले हमें ये बात डाइजेस्ट करने दें जो आपने की है, क्योंकि लेट मी मेक इट अ बिट सिंपल फॉर मेंबर्स। इनका कहना यह है स्पोर्ट्स बोर्ड ने, चड्ढा साहब, राणा साहब, स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें इस फोरम के ऊपर आके बताया कि ये 19 कनाल का जो ऑडिट का ऑब्जेक्शन है वो हमारा बनता नहीं है कलेक्ट करना, वो कलेक्ट BOR करता होता है, BOR का ही इशू है। तो वो उन्होंने कहा कि ये हमारा केस नहीं बनता। सो दिस मैटर वाज रेफर्ड टू BOR। जब आपको ये लेटर मिला और उसके बाद जो इन्होंने ब्रीफ किया BOR की तरफ से, इन्होंने जो ब्रीफ किया है वो कहते हैं कि ये हमारा एग्रीमेंट 2013 में हो गया स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ कि 100% कलेक्शन स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा और वो डिपॉजिट कराएगा BOR के अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर लग ये रहा है ऑडिट एंड फाइनेंस, ये लग ये रहा है कि कहीं पे गलत बयानी की गई है इस फोरम के साथ।
सर ये जो है ना 2013 वाली बात, वो स्पोर्ट्स बोर्ड ने नहीं बताई, ना इस फोरम को बताई और ना ही ऑडिटर को बताई और ना ही वेरीफाई कराई, ये हमें भी आज पता लग रही है। तो जो अभी ऑन द फेस ऑफ इट तो ये बात ठीक लग रही है कि ये पैरा उन्हीं से पर्टेन करता है और उन्हीं को एक्टिविटी करनी चाहिए थी, ये बी और का काम नहीं है सर। Now, the issue is कि as areas of land revenue कौन कलेक्ट करता है? सर जो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू है वो हमारा सेक्शन 80 है लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, उसके अंदर सर वो नोटिस देता है तहसीलदार और कलेक्ट करना होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। The ball comes to your court कि ये पैसे बेशक स्पोर्ट्स बोर्ड के या किसी रिकवर तो आपने करने हैं। सर हमने वो लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर करना है, अगर वो लैंड रेवेन्यू की मतलब which is the authority to recover the money? सर वो तो उस टाइम पे है ना, अगर वो रिकवरी ना दे रहे हो तो अगर वो PCB recovery ना दे रहे हो तो इन्होंने सर करनी है कोर्ट से मैयर है। देखिए ना, वो भी that is under the government of पंजाब, स्पोर्ट्स बोर्ड भी पंजाब गवर्नमेंट का ही है ना। जी सर। वो अगर देने हैं तो उन्होंने घर से तो नहीं को देने हैं। सर बिल्कुल ऐसा ही है, अगर इस पे PCB को एक चलान इशू करते हैं तो मेरा ख्याल है वो कल दे देगा, तो हमें यही तो है, they should move it as areas of land revenue, तो उसको कलेक्ट करवा देंगे। वो तो सर वो तो एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू तो हम तब करेंगे जब वो माने ना माने, जब ना दे रहे हो। यहाँ तो कंटेस्ट हो रहा है कि किसने देने हैं। डीसी लाहौर कहाँ है? जी डीसी He should be here and you know उनको ये मिला होगा, उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन इसके ऊपर लिया, वो को बता सकते हैं? Mohammed Suhaib Butt here, Additional Deputy Commissioner Revenue Lahore. For all practical purposes, Honourable Chair, the District Collector Lahore. सिर्फ गुजारिश ये है कि इट नीड्स टू बी लर्न एट फर्स्ट कि ये रेवेन्यू, ये फाइनेंस, ये लाइबिलिटी क्या एज अंडर द टर्म्स ऑफ द लीज डीड बिटवीन द डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अरेयर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर भी हो सकती है कि नहीं। At the present time, we have received no request from the sports department for the declaration of this liability as an arrear of land revenue, one. Two, by way of the specific orders of the Board of Revenue Punjab, which received their issuance after the approval of the Government of Punjab, absolute custodianship over these matters, over these lands, and the finances liable to be paid therein was transferred to the sports department. I believe that the sports department was perhaps not aware of the complete truth when it stated that the responsibility here had to be delegated to the Board of Revenue and the Deputy Commissioner Lahore. As we stand right now, the आगे हटो, बात कर रहे हैं ना, तुम खड़े हो पीछे, साइड पर जाओ, पीछे से देते हैं। अच्छा। In appreciation of the prevailing facts leads us to understand that the exclusive and absolute responsibility to receive these finances lies presently with the Sports Department of the Government of Punjab, and the Office of the Deputy Commissioner Lahore shall take cognizance of this matter if this revenue under the terms of the lease deed can be declared as arrears of land revenue, one, and if and when a request from the Sports Department is received after the declaration I will stop you here. When was this communicated with you and your office that there has been a contest between the Deputy Commissioner office and the sports department? When was it communicated to you? To speak to you candidly, I received first awareness of this matter last evening, and I come here prepared after examining the file which lays at the office of the Deputy Commissioner Lahore, and my examination has led me to understand that this responsibility lay with the sports department, because by way of a specific notification of the Government of Punjab, they had been declared as the exclusive custodian of these lands, as the worthy Secretary Colonies has already read. Finance. सर अपेरेंटली तो लगता है कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने इसकी रिकवरी करनी है, लेकिन चूंकि दोनों डिपार्टमेंट इस किसी नतीजे नहीं पहुंच रहे, आप सर इसकी रिकन्सिलेशन करवाएं दोनों डिपार्टमेंट से आपस में बैठ के, और हमें तो रेवेन्यू चाहिए, वो दे या वो दे, तो ये डिले हो रहा है सर, इसकी दोनों डिपार्टमेंट्स को बैठ के रिकन्सिलेशन करनी चाहिए और इमीडिएटली रिकवरी करनी चाहिए। ऑडिट रिकवरी कब से आप कह रहे हैं कि नहीं हो रही? 2013 से? जी सर, 2014 ऑनवर्ड रिकवरी नहीं हुई सर। 14 से ऑनवर्ड? जी सर। सर आप डायरेक्शन नोट फरमा लें, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड एंड योर सेक्रेटरी colonies, sorry, member colonies shall sit and decide that who will collect, receive the
recovery since 2014 and report back within 30 days. Till then, the para has been deferred. Next, audit. सर ये अब मेन ब्रीफ पे आ जाएं सर, पेज नंबर 1. Para is sir 1.4.1. Non-realization of penalty on purchase of property through non-banking channel. सर ये फाइनेंस एक्ट 2019 में आया था, जिसके बाद ये उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी की, और अगर वो नॉन बैंकिंग चैनल से होगी लाइक बेरर चेक से या कैश से, तो उस पर 5% पेनल्टी इंपोज की जाएगी. लेकिन सर ये अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं अभी तक पेनल्टी इंपोज नहीं की. इससे पहले सर ये PSC 1 में भी मैटर डिस्कस हो चुका है. तो इधर तो सर आपको रिकवरी नज़र आ रही है तकरीबन 698 मिलियन की, लेकिन ये बिलियंस में जा चुकी है रिकवरी. तो डिसाइड ये हुआ था PSC 1 में कि ये रिकवरी परसू करेंगे. अभी लेटेस्ट पोजीशन ये है कि सर FPR से इन्होंने क्लैरिफिकेशन मजीद मांगी है कि क्या ये रिकवरी के वेद होल्डिंग एजेंट हैं कि नहीं और कहाँ जमा करानी है. लेकिन मेरा ख्याल है कि मैटर इज़ वेरी क्लियर कि इन्होंने रिकवरी करानी, क्योंकि सर यही ट्रांसफर डीड्स कर रहे हैं सर. डिपार्टमेंट. जी सर, हमारी सबमिशन ये है कि सर हमारी प्री PSC में ऑडिट के साथ एट लेंथ मीटिंग हुई है. इसी की कंटिन्यूटी में हमने कमिश्नर RTO ऑफिस लाहौर के साथ एक डिटेल्ड मीटिंग की है. कमिश्नर साहब का ये फरमाना था उस मीटिंग में कि ये रिकवरी पेनल्टी है और ये पेनल्टी हमने रिकवर करनी है, और उन्होंने ही कमिटेड कि जी हम ये रिकवरी करेंगे. इसके ऊपर उन्होंने कहा जी आप हमें एक लेटर लिख दें. ये दिस इज़ 3 days बैक स्टोरी. हमने उनको एक लेटर लिख दिया. उन्होंने कहा कि जी हम आपको जवाब दे देते हैं इसके ऊपर कि हमने रिकवरी करनी है और हम कर लेंगे, आप हमें सिर्फ ये कन्वे कर दें. हमने उन्हें कन्वे किया तो उन्होंने यही मैटर मेंबर पॉलिसी FBR इस्लामाबाद को परमिशन के लिए लिख दिया है कि जी हमें इसमें गाइड भी करें और हमें इजाज़त दें कि एज अ पेनल्टी ये अमाउंट हम रिकवर करें. नाउ दिस इज़ बिटवीन FBR एंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. अमाउंट ये फाइनेंशियल लूप क्यों इतना रह गया बीच में? सर ये बेसिकली ये वो अमाउंट मीटिंग का इंतजार करना पड़ता है. मीटिंग बुलाएंगे तो आप रिकवरी करेंगे, मीटिंग नहीं होएगी तो कोई इसका कोई रिकवरी ना हो. 3 दिन पहले हमने इसी पे मीटिंग इसलिए की है कि ये इशू लॉन्ग स्टैंडिंग सॉल्व नहीं हो रहा था. तो अब क्योंकि ऑन रिकॉर्ड इन राइटिंग FBR इस्लामाबाद से मेंबर पॉलिसी से उन्होंने सीख कर लिया है इसमें रिकवरी होनी है. वो हमने अगर एरियर्स के तौर पर आएगी तो हम करेंगे, लेकिन होनी है या नहीं होनी आप कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ हजरात यहाँ पर कह रहे हैं कि ये नहीं बनती रिकवरी. ऐसे ही है, अगर रिकवरी होती तो आप सारे कर लेते. सर नहीं, द इशू इज नॉट दिस रिकवरी, दिस इज अंडर द फाइनेंशियल रूल्स. ये जो पेनल्टी है दिस इज रिकवरेबल बिकॉज दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट सर्टेन लिमिट. ये 5% पेनल्टी है, इन्होंने रिकवर करनी है. रिकवर कैसे करनी है? दे हैव आल्सो कन्फेस्ड है कि जी हमने मीटिंग कर ली है चेयरमैन जो कमिश्नर साहब ने और मेंबर ने. तो फिर व्हाई डू यू सीक एडवाइस फ्रॉम द मेंबर इफ यू ऑलरेडी मेड if you already decided then why are you seeking? They have sought advice for themselves कि हमने as a penalty made a commitment. फिर कमिटमेंट और रिकवरी कैसे हुई आपने? आपने कहा ना they'll make the payment. सर वो मैंने ये अर्ज किया कि रिकवरी होनी है, लेकिन किस एजेंसी ने करनी है? फाइनेंस एक्ट के तहत पेनल्टी के तौर पर फाइनेंस वो करेंगे FBR. I think you need about 10 years for that. नो सर, नॉट एट ऑल. ये अब क्योंकि टेकअप हो चुका है मामला और विद इन अ वीक हम इसको डिसाइड कर लेंगे कि या उन्होंने करनी है तो वो अपने फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत नोटिस देंगे पेनल्टी के तौर पर, और अगर हमारे पास आएगी तो फिर हम इसको एरियर्स के तौर पर रिकवर करेंगे. लेकिन उसमें उन्होंने हमें ये भी हेड बताना है कि किस हेड में ये पैसे जमा करवाने हैं. चट्टा साहब. मिस्टर चेयरमैन, जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट सीम्स लाइक के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अब आपको ये भी सिखाएगी द हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स एंड फंक्शंस.
आप basic issues you are not able to decide आज तक, it means that you have never recovered this penalty in the history. If you don't know, okay, if you are still seeking the advice of the federal revenue, it shows really lack of good practices in government of Punjab's department. सर मैं इसमें अर्ज करता हूँ इस ये जो एक न्यू Are we इंट्रोडक्शन going to teach you how the government will work? सर इसमें न्यू इंट्रोडक्शन थी, सेक्रेटरी टैक्सेस इसके ऊपर वर्क करते रहे पूरा। And when was this new introduction was made? सर This ये is the 2019 Act. में हुई थी, 2019 में हुई। 2019 and today we are sitting in 2025. सर वो उसकी वजह ये पहले 2021 के हैं तो वो वेरी इनिशियल स्टेज थी। उस वक्त इवन के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये भी कंटेस्ट करता है कि हमें अभी तक ये नोटिफिकेशन कन्वे भी नहीं हुआ था जब ये रिकवरी होनी थी। But Secretary Saab, we show very serious displeasure that 6 years are passed, penalties were due, and the government departments were not even able to decide that whose primary responsibility was this. This is a serious displeasure notice on the behalf of the political executives. We expect far better practices from the government of the Punjab departments. सर एक थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें तो सेक्रेटरी टैक्सेस आपको इसकी हिस्ट्री इजाजत एंड पे देता हूँ, पहले चौधरी साहब बोलेंगे। ये तो आप कह रहे हैं कि 2021 का ये पैरा है, उसके बाद आपने ये रिकवर किए हैं, उस वक्त तो इनिशियल स्टेज था। The 6 years are passed. They have not been able to decide even. नहीं सही, इनका कंटेंशन ये है कि बिकॉज दिस वाज एट एन इनिशियल स्टेज, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिला था। क्या उसके बाद के जो साल हैं उनके अंदर आपने ये रिकवर किया? हिस्ट्री की अभी आप करते हैं रिकवर? नहीं सर, एक मिनट आप एक मिनट सर, you are not clear about it and so are your revenue officers here and let me 6 explain साल में आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सके कि किसने रिकवर करना है, तो आप रिकवर क्या करेंगे? उसके बाद वो कहेंगे जी पुराने हो गए हैं, हम किधर से ढूंढ के लाएं, वो बंदे नहीं मिल रहे। ये तो कोई बहाना नहीं है। दूसरा आप FPR ये जो फेडरल जो टैक्सेस हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री या इंतकाल, क्या ये कोई और टैक्स भी आप रिकवर करते हैं या FBR कोई टैक्स रिकवर करता है? सर मैं सेक्रेटरी टैक्सेस कुछ अर्ज करना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो तो। सर ऐसे है कि व्हेन वी एनालाइज दीज पैराज तो देयर वर सर्टन गैप्स, वी फाउंड सर्टन गैप्स इन द लॉ। I'll elaborate it that we have now asked the FBR as to who is the withholding agent for this penalty, this 5% penalty of the non-banking channel transaction, and also if we it is not clear who is the withholding agent, it is not clear who is empowered or authorized to recover this penalty amount, and if यही तो इशू है हमारा कि हमने अभी तक, अभी एक मिनट सर, यही तो हमारा सवाल है कि अभी तक हमने क्यों नहीं ये डिसाइड किया ऑडिट। एक मिनट, लेट्स गो टू पेज 4। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आपने कहा है कि आप और डिपार्टमेंट बड़ा कंप्लेसर नज़र आ रहा है यहाँ पर। डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमने करना था, हमसे गलती हुई है, हमने नहीं किया, लेकिन आपने कमिश्नर लाहौर की एग्जांपल दी, बाकी आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कुछ कंटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा है कंटेस्ट कर रहा था जो मैंने शुरू में बात की थी, क्योंकि मैं पेज 4 पे आए ना ज़रा, पेज 4 पे डिपार्टमेंट का रिप्लाई है कि BOR का जो ये रिप्लाई डिपार्टमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड द BOR वाइड लेटर सो एंड सो डेटेड 12/12/2024 हैज डायरेक्टेड टू ऑल सब रजिस्ट्रार्स ADLR ट्रांसफर इशारा करके, और ये वो नीचे कह रहे हैं कि हमारा ये बनता ही नहीं है कि 2024 में हमें ये बताया जा रहा है कि आपने 2021 से रिकवरी करनी है। आप क्यों इतने कंप्लेसर हो रहे हैं? अगर आपको लेट इन्होंने आया है फाइनेंस का लेटर बाद में आया है, तो आपकी जब रिकवरी बनती नहीं, आपके हमारी बनती नहीं है। सर इसमें मज़ीद ये बताना चाहता हूँ कि अभी क्योंकि जब हमने मीटिंग की तो इट केम टू आवर नोटिस दैट इवन FBR itself is not clear about the procedure and modus operandi of this recovery. Therefore, they have referred our queries to their policy department, that the policy wing of the FBR guide them that how to proceed and how to effect these recoveries. उसमें सर चेयरमैन साहब, the issue there is a word delegated legislation. I hope you understand that. Yes.
I hope you understand the meaning of delegated legislation. That is secondary legislation. And you are given power to make rules, bylaws according to your needs also, which empowers you. और ये assembly के members ने ये बननी है ना authority, उसमें ये ineffective हो जाएंगे. This is on the floor of the house. मैं इधर meeting में कह रहा हूँ. गुजारिश ये कि आपने अपने बाई लॉज बनाने हैं और उसमें आपने इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, रिकवरी नहीं कर रहे हैं. ये जो जितने सब रजिस्ट्रार हैं इनकी अपनी ज़ाती जो रिश्वत है उसकी रसीद तो नहीं होती, वो तो पूरी होती है. हाउ डू यू डिफेंड दैट? कोई म्यूटेशन, कोई चीज़ बगैर पैसे की होती है? मुझे बताएं. मतलब कोई मुझे चीज़ बता दें रेवेन्यू में हो. ये पुलिस वाले तो वैसे बदनाम. देखिए FBR क्लियर नहीं है, BOR क्लियर नहीं है. बायर सेलर और सेलर को कैसे पता लगेगा? और बायर सेलर इस पॉइंट पर 6 साल पुरानी रिकवरी कैसे आपको करके देगा? जो रजिस्ट्रार होगा, जो भी होगा. सर जी जेठा साहब, मेरी सबमिशन है सर. सेक्रेटरी साहब सर देखें, 2019 में लेजिस्लेशन पास होगी. ऑनरेबल मेंबर राणा साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि जब लेजिस्लेशन पास होगी तो इट वाज द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू मेक द रूल्स. So you accept on this forum that you were failed to initiate even to start consideration of making the rules. अगर ये पैरा आज ऑडिट में ना आता तो आप अगले 10 साल भी रूल्स ना बनाते. It is a serious lapse on the behalf of the department and you should accept that. आपको रूल्स जब लेजिस्लेशन पास हो गई थी, it was your duty to make the further rules on this legislation, to implement the rules. Sir, very right, sir. Thank you. मैं let me say, honorable member ने जिस तरह point out किया है, we will honor it. और मैं FBR के साथ मैं again I will say कि हम ये issue जो है, जो भी पीछे long standing है, हमारी वजह से नहीं होगा, जिस वजह से भी होगा. As a department, let me say it, sir, कि we will get this issue decided again within fortnight. हम जो FBR के साथ take up किया हुआ है, और it will be decided forever कि ये amount हमने लेनी है तो हम we will start recovering it. और अगर उन्होंने लेनी है तो they will give us in writing. लेकिन हम इस issue को इसके बाद resolve कर लेंगे. और मैं honestly telling you sir, pre PAC मैंने ही ली थी और उसी के लिए हमने ये initiate किया FBR के साथ कि आप कहते हैं हमने लेनी है penalty recover, तो फिर आप लेते क्यों नहीं है? तो ये admitted sir कि ये delay है, लेकिन ये है कि इसको हम resolve कर लेंगे within fortnight. Good. That is the spirit we आप expect from fortnight you. कह रहे हैं, but इसको थोड़ा time bound realistic terms में करें कि जो आप कर भी सकें. सर आप एक महीना कर लें क्योंकि हमने FBR से जवाब लेना है. महीना कर लें आप. 30 days. Audit has to say something. जी audit. सर ये द मैटर इज़ ऑलरेडी वेरी क्लियर. इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि इन्होंने रिकवरी करनी है. ये 12 दिसंबर का 2024 का जो बार बार लेटर मेंशन कर रहे हैं, इसमें सबको डायरेक्शन गई है सारे ERCs को, EDCRs को, कि आपने रिकवरी करनी है. तो मेरा ख्याल है अब ये दोबारा क्लैरिफिकेशन तो ले ली है, चले ले लें. और दूसरी सर इसकी प्रैक्टिकलिटी देखें तो जब ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके बाद पेनल्टी इम्पोज करेगा FBR. इसमें एरियर्स भी हैं. तो मेरा सर ये ख्याल है कि ये जो रिकवरी एट सोर्स होनी चाहिए उसी तरह जिस टाइम ये ट्रांसफ़र होती है और जो कि नॉन बैंकिंग चैनल से करवाते हैं. और 12/12/2024 का लेटर अगर आप देखें तो मैटर इज़ वेरी क्लियर. अब इसमें कोई एम्बिगिटी नहीं रहेगी सर. देखिए दिस इज़ वेरी क्लियर कि जो पैसे भी आप एट सोर्स काट लेते हैं वही मिलते हैं, जो असेसमेंट्स वाले नहीं मिलते हैं. तो आप इसको एट सोर्स देते हैं, इनकी जो अपनी वही अगेन आई रिपीटेड जो अपनी फीस वो तो ले लेते हैं. व्हाई नॉट द गवर्नमेंट फीस? तो गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसे लाने हैं? सर इसमें all the issue is the money is to be collected, to be recovered, whether it is sports board or the board of revenue. They should decide, as the honorable chairman has decided. You are given 1 month, 30 days to decide the issue and recover the money. Exactly. जो सॉरी राणा साहब, थैंक यू वेरी मच. और मुझे याद करवा दिया जो पिछला पैरा था उसमें भी स्पोर्ट्स बोर्ड एंड योर मेंबर कॉलोनीज विल सिट एंड जब आप कंप्लाई करेंगे विद इन 30 डेज विद रिकवरी करेंगे. जी राइट. रिकवरी चाहे BOR ने रिकवरी करनी है वो रिकवरी करके आए, जी वेरी. और चाहे स्पोर्ट्स बोर्ड ने रिकवरी करनी है वो रिकवरी करके आए. जी वेरी राइट सर, वेरी राइट. सर ये 50 पैराज इसी नेचर के, इसके बाद 43 पेज नंबर 43 पे है नेक्स्ट सर. इसको डेफर रखें. जी सर डेफर. सर पैरा इज एट पेज नंबर 43 पैरा 1.4.2 एंड इट रिलेट्स टू सर असिस्टेंट कॉलोनीज खानेवाल. सर पेज नंबर 43
सर ये स्टेट लैंड की अलॉटमेंट का पैरा सर, जो रिमाउंट घोड़ीपाल मरबे का पैरा सर, 1 रिमाउंट पेडिग्रीड मेयर जिसके पास होगी उसको 25 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा अलॉट नहीं होगी। लेकिन सर जो ऑडिट ने रिकॉर्ड को एग्जामिन किया तो पता लगा कि एक्सेस लैंड जो है सर वो अवॉर्ड हुई है जिनके पास 1 रिमाउंट पेडिग्रीड मेयर है सर। तो इसके बारे में सर ये अभी महकमा बताएगा। सर सबमिशन ये है कि हमारे पास इससे रिलेटेड ऑनरेबल फोरम ने तमाम डिप्टी कमिश्नर साहबान को बुलाया था कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की तफसील बताएंगे कि जिसके पास जितना इजाफी रकबा है इन्होंने वापस ले लिया है। अभी लेटेस्ट प्रोसीडिंग सर ये है कि हमारे लेवल पर जब हमने प्री पीएससी में ये किया है तो वी फाउंड आउट कि जिसके पास इजाफी ज़मीन है क्यों है, उसके नतीजे में हमने डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का ADCR साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने तमाम लॉट्स वालों को रिजम्पशन के नोटिस 3 दिन पहले दे दिए हैं कि हम आपसे ये ज़मीन वापस क्यों ना ले लें। दूसरी बात जो अमाउंट है सर, ये अमाउंट ऑडिट के साथ हमारा सेटल हो गया है, ये वैल्यू ऑफ द लैंड है, ये रेंट नहीं है उसका। तो वैल्यू ऑफ द लैंड एक असेस कर ली गई थी कि जी इतने वैल्यू की ज़मीन उनके पास है जो कि उनको हमने बेची नहीं है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने या डिस्ट्रिक्ट ने बेची नहीं है ज़मीन, तो इसलिए ये वैल्यू की अमाउंट तो आउटस्टैंड नहीं करती, ज़मीन की रिकवरी रिजम्पशन आउटस्टैंड करती है। हमारे पास खानेवाल से आए हुए हैं सर DC साहब, वो बताएंगे कि इन्होंने क्या प्रोसीडिंग उसके ऊपर किया, क्योंकि ऑनरेबल फोरम ने उन्हीं को ही बुलाया था कि डायरेक्शन। साहब आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन रेलेवेंस टू दिस क्वेश्चन। सर आप देखें कि ऑल द डिप्टी कमिश्नर जितने भी हैं उनके घर 8-8 एकड़ 10-10 एकड़ में हैं, देयर इज एक्सेस लैंड भी उनकी है, वहाँ पे ना नर्सरीज भी बनाई हुई हैं। वेयर इज दैट इनकम गोइंग? You can find it out. जितने भी डिप्टी कमिश्नर AC DC ADCR घर हैं, ये 8-8 एकड़ के में घर में रहते हैं। इसमें कोई पॉलिसी मुझे बताएं, डिनाई करते हैं, देन आई गिव यू राइट। अभी मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। सर इसमें सेक्रेटरी कॉलोनीज बता रहे हैं कि हमारे पास ये जो हाउसेस रेजिडेंसीज हैं इसकी कोई रिकवरी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि इसके ऊपर रेंट अप्लाई होता है और उन्होंने वो देना है। अंडर विच लॉ एक घर आपको दे दिया है, क्या उसकी जो साथ एक्सेस लैंड है वो भी आपको दे दी है? अंडर विच लॉ? मैंने 88 में ये क्वेश्चन किया था एंड दे हैड नो आंसर फॉर दैट कि जी ये घोड़े They still don't have an answer. They still don't have an answer for that. They still have it, and that is a public money. वो they can't take it to their own accounts. उस पे आप, क्योंकि वो आपकी भी है, मतलब मजा नहीं पहना, you will not take action against them. सर ये आप ये है try to be सेक्रेटरी कॉलोनीज जी DC खाना। मैं सर इसमें लीगल ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें सर हम जो देते हैं कंपाउंड एंड कचहरी रूल्स के तहत देते हैं जगह, इसमें कभी भी नहीं होता कि वो कमर्शियल यूज़ कर सके। हमारा अपना एक कॉलोनीज़ का अकाउंट है, बल्कि नो अकाउंट है, उसके अंदर अगर पैसा कोई नहीं आता तो वो इलीगल है। और ऐसी हमारी कोई स्कीम नहीं है कि विदाउट ऑक्शन इस तरह कोई कर दी जाए। तो ऐसा अगर कोई नॉलेज में आता है तो साहब मैं अभी ਇੱਥੇ जम्मे पढ़ा सारा आई नो एवरीथिंग, मेरी अद्धी फैमिली थोड़ी सर्विस हैगी है। मकसद है कि ट्राई टू अप्रिशिएट कि मैंने एक चीज़ बताई है, रिकवरी आपने नहीं करनी है। शहजाद हसन परवेज वो दैट टाइम कमिश्नर फैसलाबाद जब मैंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा जी ये हमें ना ये घोड़ा रखने के लिए, मैं कहा जी घोड़ा की रखना है तो तक पराडो पजेरो मिली हैं, तुझी काली रखने घोड़े। आप देखें मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी इज़ वेरी इस वक्त प्रवेल कर रही है। आप ना करें, आप इसको कह दें कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, देन आई विल फाइट इट आउट फॉर दैट। क्या इनके घरों में जो एकड़ ज़मीन है वहाँ पर नर्सरियाँ नहीं हैं? वो नर्सरी उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए रखी है। नहीं सर, अपने करने दिया, उनका अपना घर है। और सर और भी घर रखे होते भी रखे हैं। हाँ सानू DC खाने वाल ब्रीफ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कांग्रेस ने बनाई थी पॉलिसी। आगे आ जाए मैडम। वो गोरों ने बनाया था ना तब समझ में लिया। मैडम यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें
जिसमें एक केस है शायद जिसमें वो कमिश्नर मुल्तान के पास उन्होंने कंटेस्ट किया हुआ है। So why does the कमिश्नर मुल्तान को इतना टाइम क्यों लग रहा है डिले फैसला करने में? सर हमारे पास टोटल 148 केसेस हैं इस तरह के जिसमें एक्सेस है 25 एकर्स में जो इनको अलॉट हुआ हुआ है। सर हमारे पास एज एंड व्हेन जब ये केसेस रिन्यूअल के लिए आते हैं तो तब हम उसको देखते हैं कि वो एक हमारे पास केस आया उनके पास एक्सेस देन 25 एकड़ था तो हमने उसमें लैंड रिज्यूम किया। दैट पर्सन वेंट टू हाई कोर्ट और वहाँ से केस रिमांड होके कमिश्नर मुल्तान के पास है सर। बाकी तमाम केसेस जो हैं रेस्ट ऑफ फिर सर 13 लोग और कोर्ट में चले गए और उन्होंने भी इसको कॉन्टेस्ट किया कि क्योंकि उनके ऑलरेडी 25 एकड़ से एक्सेस है तो वो इन एडवांस आप कह लें या प्रीएम्प्टिव तौर पे वो चले गए। तो सर उन सब को हमने नोटिस इशू कर दिए 148 में से 147 को। एक जो है उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से स्टे है सर कि अभी उसको ना करें अनटिल एंड अनलेस इट इज़ डिसाइडेड बाय कमिश्नर साहब। तो सर वंस दैट डन तो उनको भी इशू कर देंगे। बट ये मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब ये इनिशियली ये स्कीम लॉन्च हुई थी और हमने ज़मीन दी थी तो एक्सेस लैंड हम क्यों देते गए लोगों को? क्यों एक्सेस लैंड चली गई? 1938 की लीज्ड आउट लैंड है तो प्री पाकिस्तान के बनने से भी पहले की जो मुझे इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है तो उसके बाद फिर ये लोग उसको रिन्यू करते रहे हैं नो डाउट, लेकिन ये इतना पुरानी ज़मीन है अलॉटेड है। इशू ये था कि इसमें जो एक्सेस लैंड थी उसको पैरे में वैल्यू के तौर पर रिफ्लेक्ट कर दिया गया है। एक्चुअली वो ज़मीन आगे दी नहीं गई है, वो रिज्यूम होनी है। चले हम वापस आ जाते हैं। एक मिनट साहब बिफोर यू ऑडिट आप कम अप विद प्रिसाइज आपका जो एतराज़ है कम अप विद दैट जो आपका इशू है। सर हमारा यही इशू है कि एक्सेस अलॉटमेंट हुई है, बेशक 1938 में अलॉटमेंट हुई है लेकिन रिन्यूअल होता रहा है। जब रिन्यू कर रहे थे तो उनको देखना चाहिए था किसको एक्सेस अलॉटमेंट हुई है तो उससे आप रिट्रीव करते या जो भी फाइन करते ये है। आप बार बार बताते रहे उनको रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट्स को कि यहाँ पर इतनी एक्सेस है या पे इतनी एक्सेस है। जी सर हमने 19-20 में ऑडिट किया, ये पॉइंट आउट किया, इससे पहले मेरा पॉइंट नहीं हुआ था, उसके बाद हम फॉलो अप देते रहे। आज सर 6 साल हो गए हैं तो उसके बाद ये स्टेटस सर जब ये विद योर परमिशन मिस्टर चेयरमैन Number one, I have 3 questions. Number one, total number of acres allotted in district Khaniwal. Those who have excess of 25 acres. Number one, इसका हमें बता दें कि 148 जो आपके लीजेज हैं इनको कितने एकर्स आपने एक्स्ट्रा अलॉट किए हुए। नंबर 2, लास्ट टाइम इनके कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कब रिन्यूअल किए थे। नंबर 3, जब आप इनको रिन्यू करते हैं तो आप इनका आपकी जो एग्रीमेंट है आप इनकी लीज रेंट अप्रेजल भी करते हैं एज पर द मार्केट रेट। नंबर 4, डिस्ट्रिक्ट में ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिव्यू दीज agreements on the behalf of the government, who is the custodian of the interests of the government in district Khaniwal? और ये भी ऐड कर लें कि जो लैंड की जो एरिया है वो कब कैलकुलेट किया गया है। जी इनके आंसर्स प्लीज हमें दे दें। सर जितने एकर्स हैं 148 केसेस के सर वो डिटेल मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बता दें प्लीज इस फोरम। सर आई डोंट हैव इट। सर ये 3162 एकड़ हैं सर 3162 एकड़ जी एक्सेस 3162 एकड़ डिस्ट्रिक्ट खानीवाल में एक्सेस लैंड लीज हुई है। 3162 एकड़। सॉरी कनाल्स हैं सर 3000। अच्छा 3162 कनाल्स हैं सर। नहीं, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द डीसी खानीवाल। आप पूछ लें अपने स्टाफ से। सर ये आपको चेक करके बता देते हैं। ये आप हमें बता दें। जी सर। लास्ट टाइम व्हेन यू रिन्यूड दिस कॉन्ट्रैक्ट्स। सर इसके अंदर एज एंड व्हेन जब ये एक्सपायर होती है हम 5 इयर्स तक रिन्यूअल लास्ट टाइम व्हेन यू टुक दिस एक्सरसाइज प्लीज। सर अगेन आई हैव टू शेयर विद यू क्योंकि हर एक की डिटेल डिफरेंट है। आस्क योर स्टाफ व्हेन यू लास्ट टाइम रिन्यूड दिस कॉन्ट्रैक्ट्स। जी सर। And when you renewed these contracts, did you evaluate the market rates of the lease? सर इसके अंदर we go with the policy सर। अगर हमारा जो है पॉलिसी के मुताबिक हम चाहेंगे जो हमें डायरेक्शंस आएंगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। You can ask further time from this forum as well, but we need the comprehensive Sir, I'll come back with all the 5 points, sir. Please. जी sir, time. With which, Mr. Chairman, she doesn't have the relevant information now, so if we can give her some extra time, it's a huge. I would love to give extra time, but member साहब कुछ तैयारी व्यारी लग नहीं रही की हुई है।
When were you conveyed, DC Khaniwal, when were you conveyed that you are going to attend PSC and you will be giving the answers to this para? Were you conveyed? जी सर, I knew that. सर, I'm sorry, मैं सर next time इंशाल्लाह आपकी तमाम चीज़ों को. Okay. नेक्स्ट इसको रेफर करें. मेंबर साहब, हम एक भी पैरा अभी तक हम सेटल नहीं कर पा रहे. हाँ. सेक्रेटरी साहब, इसमें आप डायरेक्शन दे दें, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. दूर दूर से है. भावलपुर, नेक्स्ट भावलपुर है. जी सर, नेक्स्ट पेज नंबर 45 है सर. GAR भावलपुर सर. सर इसमें इशू ये है कि कंडोनेशन फ़ी जो होती है वो चार्ज करनी होती है कन्वर्जन ऑफ यूज़ ऑफ लैंड हो. जो लैंड एग्रीकल्चर के लिए दी गई है, अगर उसको कन्वर्ट कराया जाए फॉर रेजिडेंशियल पर्पस और कमर्शियल पर्पस, तो मिनिमम 5% कंडोनेशन फ़ी चार्ज होगी सर. इस पर्टिकुलर केसेस में सर कंडोनेशन फ़ी चार्ज नहीं हुई. टोटल अमाउंट सर बनती है 218 मिलियन. लेटेस्ट स्टेटस में बता दूँ सर 1,35,000 की रिकवरी हुई है इसमें से, और बकाया सर 218.8 मिलियन इज पेंडिंग विद द मैनेजमेंट. नहीं, ये पैरा बनाया किसने है? ये वर्किंग पेपर किसने बनाया है? सर ये महकमे ने, BOR ने. डिपार्टमेंट, ये वर्किंग पेपर आपको भी ये ऑडिट फॉल्ट नज़र आ रहा है? यहाँ पर देखें आप, पैरा का अमाउंट रिकवरी के बाद इसको लेस होना चाहिए. नेक्स्ट पेज के ऊपर वो उसी तरह बैलेंस शो हो रहा है 86. अनकुक्ड सा पैरा लग रहा है. इन्होंने कहा कि दिस 5% कंडोनेशन फीस टू बी रिकवर्ड. नहीं, कुछ रिकवरी कर ली ना. व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स जिन्होंने ये कलेक्ट नहीं की है? अब आप कर रहे हैं. देयर मस्ट बी सम एक्शन अगेंस्ट द कंसर्न पीपल हु वर रिस्पांसिबल फॉर द रिकवरी. उनके खिलाफ कभी डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया है? जी सर, फर्स्ट टाइम हम ये ऑडिट इसको ना पॉइंट आउट करे तो चला गया. ये तो फर्स्ट टाइम सर हम ये कर रहे हैं कि ये जितनी रिकवरी है डिस्ट्रिक्ट वाइज और बाय नेम ऑफिसर वाइज इसकी लिस्ट बना रहे हैं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं सर. और अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अंडर द प्रेजेंट रेलेवेंट लॉ जो भी चीज़ है अगर होती है तो उस पर यू टेक एन एक्शन अगेंस्ट दैट. उनको लेटर देते हैं, सेंश्योर करते हैं, वट एवर इट इज. इसमें आपकी ये इट वाज प्रूव्ड दैट दे हैव वायलेटेड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस. 5% इनकी जो रिकवरी जिसको कहते हैं पेनल्टी है जो भी थी कंडोनेशन फी वो नहीं ली है, तो व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स? सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ सर कि हमने फर्स्ट टाइम ये जिसके अगेंस्ट, जिस ऑफिसर के अगेंस्ट जितनी रिकवरी आउटस्टैंड करती है उस पीरियड में, उसकी अब हम लिस्ट्स इनकॉर्पोरेट करने लगे हैं. नेक्स्ट जब हम ये इस तरह के मिनट्स बनाएंगे तो उसके अंदर बाकायदा ऑफिसर्स की लिस्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि हम उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लें और उनके नाम भी सामने आए कि जो स्पिरिट आप बता रहे हैं. मेरा ख्याल है जैसे मेंबर साहब आपने कहा यू आर स्टार्टिंग एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. सर क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम आपने ये भी स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम आप रूल्स फ्रेम करेंगे, फर्स्ट टाइम आप बाय लॉज बनाएंगे. सर नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम सर नहीं, ये हम लिस्ट बना रहे हैं, इसको बाइफरकेट कर रहे हैं. और बहावलपुर से सर फर्स्ट ये अब रिकवरी जो बहावलपुर की है. I would like to ask from DC Bahawalpur few questions, please. Is DC Bahawalpur available? Sir, Farhan Farooq, DC Bahawalpur here. सामने आ जाएं प्लीज. आगे आ जाए. तीन महीने बाद Sir, Farhan Farooq. Okay, so DC Sahab audit has pointed out that there were 201 cases where the land's nature is converted from agriculture to residential and commercial use. 201 cases. Do you have the details of those 201 cases? Sir, मेरे पास एक पैरा है 86 मिलियन का, एक सोसाइटी का. Do you have details of those 201 Obviously, cases?
सर मेरे पास क्योंकि हमारे पास जो पैराज हैं सर उनकी फर्दर बाइफर्केशन होती है, 201 की फिगर नहीं है इस वक्त मेरे पास, लेकिन बाकी जो इनकी डिटेल्स हैं सर वो मेरे पास हैं। जो 86 मिलियन वाला सर पॉइंट आउट कर रहे थे उसमें हमारा रिबर्टल्स सबमिटेड है सर। उसमें ये है कि एक हाउसिंग सोसाइटी थी अल रहीम हाउसिंग सोसाइटी, लॉ में ये लिखा है कि अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो और उसकी 30% लैंड ऑलरेडी म्यूटेट हो चुकी है स्टेट को, तो फिर उसके ऊपर जो कंडोनेशन फीस है उसमें रिबेट दिया जाता है। ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने रिबेट जब तक BOR से परमिशन नहीं होती आपने रिबेट उस पर नहीं देना था। हमने इस पर यह किया सर कि हमने BOR को और कमिश्नर को इस पर लिख भी दिया है और बाकी जो उनकी रिमेनिंग एक्चुअल अमाउंट थी वो रिकवर हो चुकी है सर। नहीं, 201 केसेस पे विद योर परमिशन जो चेंज ऑफ यूज ऑफ द लैंड की टोटल कमर्शलाइजेशन फीस थी, ऑडिट इज इन व्यू के मिनिमम 5% कंडोनेशन फीस थी, बट इन सम केसेस इट वुड हैव बीन मोर देन 5% एज वेल। 5 to 25, थैंक यू। सो आई वांट टू नो कि टोटल कंडोनेशन फीस ऑन दीज 201 केसेस की मॉनेटरी वैल्यू क्या बनती है? सर मेरे पास did this district council take proper due diligence steps? We need a further audit of these 201 cases, Mr. Chairman. जब 201 केसेस में रेजिडेंशियल एग्रीकल्चर लैंड रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल यूज में गई है, उसमें टोटल लायबिलिटी ऑफ द कंडोनेशन फीस कितनी होनी चाहिए? वो वेरी भी कर रही है। वेरी भी कर रही है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने क्या सबके लिए सेम रूल्स अप्लाई किए? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कितने पैसे रिकवर किए और कितने आउटस्टैंडिंग और जिनको वेवर किया वो इट्स अ ह्यूज। I will not use any other word which I should not be saying without the proper evidence, but I would like to have this information on all these 201 cases Sir. of District Bahawalpur. Sir. The detail of every single transaction, how much condonation fees was charged, how much was the liability. You can take time, you can conduct your due diligence exercise and ask the record from the district council as well. And then ऑडिट ने इसको क्या देखा है? ऑडिट मुझे आप ये बताएं कि 6 करोड़ 17 लाख आप कह रहे हैं कि रिकवर हुआ है, पीछे आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ 81 लाख रह गया है। आगे अगले नेक्स्ट पेज के ऊपर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बैलेंस को, फिर 8 करोड़ 69 लाख। ये पैरा गलत बना है, ये क्या है? सर ये पैरा सही बना है। इसके 201 केसेस की पूरी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप कहते हैं तो मैं 1 by 1 इसको बता भी सकता हूँ जी, पूरी अवेलेबल डिटेल्स अवेलेबल। ये अब इसमें सर नहीं सर, अब इसमें 201 प्रोबेबली बहावलपुर के नहीं है, मे बी आउट ऑफ बहावलपुर किसी और जगह के भी हों। मैं अपने बहावलपुर का सर मेरे पास जो हाउसिंग सोसाइटी के हैं अल रहीम हाउसिंग सोसाइटी है, इसके अलावा डॉक्टर्स सोसाइटी है, मे सोसाइटी, 4-5 सोसाइटीज़ हैं उनके हैं, उनकी सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद है। कितनी रिकवर हुई है, कितनी रिवर्टल है सर, सारी मौजूद है जी। सर ये तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट भावलपुर के हैं जो 201 केसेस हमारे पास हैं, जिसमें सर पहला जो केस है उसमें सिर्फ एक केस है, सेकंड में सर 2 केसेस इन्वॉल्व हैं जिसमें सोसाइटीज के ओके 5 सोसाइटीज होगी, उनमें टोटल मिला के 201 केस। यू सी द थर्ड केस इट इज 174 नंबर सर। जी सर वो एक्चुअली हमारे पास ना अलग अलग पैरेज हैं, अलग अलग हैं, मेरे पास सारी डिटेल्स हैं। की बात कर रहा हूँ सर, वो 201 की डिटेल्स अवेलेबल हैं सर। जी सर डिस्ट्रिक्ट इन्होंने थोड़ा सा करन जो मैंने करा एक्चुअली कितनी बनती थी with the guidelines of the government? जी सर Between 5 to 25% as central colonies are. जी सर जी सर हमने ऑडिट भी किया और बाकायदा ज़्यादातर केसेस में हमने सर मिनिमम फीस लगाई है जो कि बनती है, ज़्यादा भी बन सकती है जी। वो क्यों ये है the honorable member said he wants detail of 201 people. We have sir. Or secondly they should come what is the criteria for conversion of land also. जी Who is the authorized person जो करता है फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन करते हैं, जिस तरह का कॉलोनीज बन रही जी जी सर। ये कौन सी जो प्राइम लैंड थी इसकी क्या कन्वर्जन थी? इफ इट वाज टू बी चार्ज 20% ऑफ द जो थी कंडोनेशन, तो उन्होंने 5% कैसे लिया? दिस जी जी नीड्स टू बी डिटरमाइंड। जी सर वी हैव द डिटेल्स। Minimum fees of 5% could have been more than 5%. जी सर इट कुड हैव बीन मोर कुछ केसेस में। So we want to have the full details of let the DC run this exercise of 201 cases. जी सर लेकिन मेंबर साहब अमजद साहब आई नो यू ऑलमोस्ट, मैं सब जो ऑफिसर यहाँ बैठे हैं उनको
जानता होऊंगा या उनको उनके ऑफिस में कभी गया होऊंगा। हम यहाँ पर पब्लिक मनी को डिफेंड करने बैठे हैं, पब्लिक मनी के ऊपर बैठे हैं, और जो ये मीटिंग हो रही है, कंडक्ट हो रही है, उसके भी पैसे चार्ज हो रहे हैं, मेंबर्स को भी मिल रहे हैं, शायद आपको भी मिल रहे हो, इस पे खर्चा भी आ रहा है। बट और हम इधर गप्पे मारने के लिए तो बैठे नहीं हैं। गप्पे मारनी होती तो मैं आपके ऑफिस में आके आपसे गप्पे मार लेता। हम यहाँ पर कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं आया ऑफिसर। मुझे तो ये बात सुन के बड़ी आई एम वेरी शॉक्ड कि अगर हमने ये पैरा डिस्कस करना था तो पैरा की प्रिपरेशन तो करनी होती है। कोई डिटेल्स किसी के पास नहीं है, कोई फाइनेंशियल कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा मुझे आपके डिपार्टमेंट में। तो वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। Under the relevant rules, you have to provide the working paper 10 days in advance. कल दिया वर्किंग पेपर आपने? दे के जाते हैं, मतलब कि ये इट इज नॉट ए जस्ट कि ये हम कोई म्यूजिकल चेयर नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर। Mr. Chairman, we are also educated, we know what our job is. मगर आपके जो आगे हैं तो मतलब as the honorable chairman said कि this is a sacred money, आप सबको TADA का कुछ मिल जाना है, हमें तो वही मिलना, सेशन हो रहा है। मगर ये you should come well prepared with all figures, relevant law, ये है। मगर I'm sorry to say, I'm really disappointed with the performance of the Board of Revenue. But this is the parent mother department. और आप नहीं अपने बच्चों का ख्याल कर रहे हैं तो कौन कौन करेगा? मैं सोच रहा था कि ये डिपार्टमेंट सबसे वेल प्रिपेयर्ड होगा इस मामले में। सर डीसी साहब, सर इसमें मेरी तरफ से सबमिशन है, जो 201 केसेस का फिगर है उसमें एक हमारी हाउसिंग सोसाइटी है अल रहीम, उसके 174 तो उसके ही है। मैं समझ गया एग्जैक्टली। वो सारे सर डिटेल है हमारे पास। करें ना, ऑडिट को कंटेस्ट करें सर। वो मेरे पास एक डिटेल है, अगर आपके पास टाइम है तो मैं सारा बता सकता हूँ। नहीं आप मोटी बात कर लें कि 174 केसेस में से आपने ये 65 लाख रिकवर हो चुके हैं सर। रिकवरी हो गई? जी सर। कितनी रिकवरी इफेक्ट में हुई है? सर 65 मिलियन की हो चुकी है सर, और इस वक्त हमारे पास कोई रिकवरी पेंडिंग नहीं है इसकी। एक्सीलेंट। ऑडिट आपने वेरीफाई की है रिकवरी? सर ये अगर 65 की हो गई तो रिकवर इसके वेरीफाई करवाएंगे तभी हम आपके पास रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। आप इसको वेरीफाई करें, और जो पीछे रह जाती है रिकवरी वो है 2 करोड़ 80 लाख तकरीबन, उसको आप उस पे सर हमारी तरफ से रिबर्टल है सर। रिबर्टल है आपका? वो रिबर्टल इसलिए है कि वो जो 30% की ये हमने एग्जाम्पशन दी है और हमने BOR को लिखा भी हुआ है, वो लॉ में लिखा हुआ है कि वो एग्जाम्पशन देनी है, क्योंकि उस सोसाइटी की जो लैंड है वो म्यूटेट हो चुकी है सर। नाउ वी आर टॉकिंग। मैं यही चाहता था कि आप इस तरह कंटेस्ट करें। कंप्लेसेंट नहीं होना हमने। ऑडिट का कोई इतराज है तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम कंप्लेसेंट हो। दिस इज नाउ वी आर टॉकिंग। आप कंटेस्ट कर रहे हैं इसको, दैट्स ग्रेट। ऑडिट आप बताएं सर। ये जितनी भी रिकवरी हो गई है अगर वेरीफाई करवाएंगे तो हम वेरीफाई कर लेंगे। आप वेरीफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सर वी आर अवेलेबल, हमने 10 दिन डेडिकेट किए थे इसके लिए। आप वेरीफाई करें। बाकी 28 के बारे में वो कह रहे हैं कि हमें वो बनती नहीं है हमारी। जी सर, एक केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास पड़ी हुई है, जो उनके लोग आए जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड प्रोवाइड किया, जितनी वेरिफिकेशन हुई है, तो वो वी आर अगेन अवेलेबल। आपकी डायरेक्शन पे हम जिस टाइम कहेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। यही बात प्री PSC में आप बैठे थे, इसको डिस्कस किया था प्री PSC में आपने? ये डिस्कस हुई थी मैडम? जी सर, इसको डिस्कस किया था और उस वक्त ये कहा गया था कि हमें वो उस वक्त तक वेरीफाई नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम कल तक या आज के दिन में वेरीफाई करके आपको चीज़ें दे देंगे। वो चीज़ें नहीं आई सर। अगर 30% रिबेट वाली बात है तो उससे भी जो पर्टेन करते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो भी वो वाले नहीं थे जिस पे हम एक्सेप्ट कर लेते कि 30% रिबेट एक्सेप्टेबल है। इसमें सर लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो 30% रिबेट है वो BOR की परमिशन से होना है। वो हमने थ्रू कमिश्नर इनको लेटर लिखा हुआ है BOR को, जैसे ही परमिशन मिलती है। लेकिन एक्चुअली वो परमिशन मिलनी है सर कि अगर लैंड म्यूटेट हो चुकी है तो परमिशन मिलनी ही मिलनी है। फाइनेंस जो प्री PSC का है उसको इसलिए हमने रखा हुआ है कि यहाँ रिकन्सिलेशन करके सब आए, क्योंकि यहाँ पर हम बहस नहीं कर सकते किसी चीज़ पर। लेकिन चूँकि ये तैयारी नहीं हुई उस तरह से, तो ऑडिट को वेरीफाई भी नहीं करवाया, तो इस पर सर मेरे तो ये रास्ता है कि प्री PSC को स्ट्रेंथन करने के आप डायरेक्टिव इशू करें सर। एग्जैक्टली, ये भी करेंगे प्री PSC शुड बी स्ट्रेंथन, एंड नेक्स्ट टाइम इस किस्म की प्री PSC करके डिपार्टमेंट आएगा तो विल अगर आप वो एक एक्सरसाइज कर लें विद द ऑडिट राइट, क्योंकि
आई एम श्योर कि हर केस में मिनिमम कंडोनेशन फीस नहीं होगी, कहीं डीसी रेट ज़्यादा होगा, कहीं ठीक है उसका ऑल दीज कमर्शियलाइजेशन केसेस हैव डिफरेंट एलिमेंट्स इन इट एंड यू नो वी ऑल बट जिन केसेस को आपने रिकवर कर लिया है उनको रिकवर कर लिया है, जो आप बाकी आप कह रहे हैं कि रिबेट बनता है, अगर वो ऑडिट और आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपने वो कलेक्ट करना है तो उसके ऊपर आपने जो रेट चार्ज करना है वो आपने उसको देखना है कि मिनिमम ना हो, वो जितना एक्चुअल है उस पे उसको सर इसमें जो रेट होता है वो टाइम पीरियड के हिसाब से होता है, लाइक इफ़ द लैंड इज़ कॉलोनाइज 40 इयर्स बिफोर तो वो 5% है, अगर 30 इयर्स 10 इयर्स 5 इयर्स तो उस हिसाब से रेट बढ़ता जाता है, जितना टाइम पीरियड कम हो रेट बढ़ता जाता है। तो ये चूँकि मैक्सिमम लैंड वो काफ़ी अर्सा पहले ही हो चुकी थी इसलिए वो 5% का मिनिमम है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा भी सर हम इसको देख लेंगे। सर मैं कर देता हूँ ये सर, जो कंडोनेशन फ़ीस होती है ये हमारी लगती है जो पहले जगह थी, जो क्राउन लैंड थी, सरकारी रकबा था, उसके ऊपर लगती है। अगर तो 40 साल पहले उसके PR हो गए थे, कोई घोड़ी पाल के अंदर था उसको 40 साल पहले मिल गई तो 5 साल, अगर 30 से 40 साल के बीच में है तो 10 साल। इसी तरह पीछे आते हुए अगर अगले उसके PR हमने देखने हैं कि पिछले 10 सालों में हुए हैं तो वो सर लगेंगे 25%। ये होगी हमारी एग्रीकल्चर से। अब ये चीज़ इसके अंदर देखने वाली है, जो हमारी दूसरी पॉलिसी है इस टाइम, जो हमारी पॉलिसी चल रही है 13/9/19 की है। प्योर जो हमारी पॉलिसी थी इससे पहले की वो 88 की है। 13/9 के अंदर हमने लिखना है, आपने वैल्यूएशन टेबल नहीं देखना, करंट मार्केट रेट देखना है कि इस टाइम एग्जिस्टिंग यूज़ क्या है। एग्जिस्टिंग यूज़ के ऊपर अगर कनाल निकल आई है तो आपने कनाल का रेट निकालना है, मरला है तो मरले के ऊपर। उसके साथ ही सर जो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ देखने वाली है वो हमारी 2022 की अमेंडमेंट है। अगर आप इंडस्ट्री से या रेजिडेंशियल से कन्वर्ट कर रहे हो तो वो सर 50% है। ये एक्सरसाइज सारे DCs एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि दिस इज फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो इस पर सर हमने प्रॉपर बिजनेस प्लान के अंदर मीटिंग्स के अंदर सारी ये कन्वे की हुई है, मिनट्स के अंदर सारी चीज़ें। वेल थैंक यू। नेक्स्ट आप ये गाइडलाइंस में ये कर लेंगे सर मैं इस मौके पे ये इनको पर्सनली बताएं आप। सर उसमें नहीं सर ये वाकई चीज़ है। इसके अंदर हमने DMG कैंपस के अंदर परसों एक रखा हुआ है सेमिनार, तो इन्हीं तमाम के ऊपर ट्रेनिंग, लेकिन वो जंग की वजह से अभी हुआ नहीं। तो कॉलोनाइजेशन में सर वो अगे चल रहे हैं, उन्होंने 29 होया सर उसके पूरा पॉलिसियां दसनियां ने। जी सर मैं एक बात करना चाहती हूँ कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ये जो कॉलोनीज़ बन रही हैं, नो डाउट ये रिकवरी की भी बात हो रही है, मगर एक बहुत बड़ा हमारा इशू ये आ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये तेज़ी से कॉलोनीज़ में कन्वर्ट हो रही है। तो इसका कोई क्राइटेरिया है कि इस बात को भी देखा जाए कि कितनी फ़ीसद हमारी जो ज़मीन है वो तेज़ी से कॉलोनीज़ बन रही हैं और हमारा सारा माहौल वो ख़राब हो रहा है। तो इस पर भी हमें वो हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ हमने एट लेंथ डिस्कस किया था, आपको याद होगा। तो वो हाउसिंग डिपार्टमेंट फिर आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट मंथ, तो फिर हम उसको कन्वर्शन तो जो है ADCR ही करते हैं, तो तेमें तो वही इशू करता है ना सर, लेकिन उसकी पॉलिसी तो वही बनाता है सर। नहीं पॉलिसी नहीं है सर, ये वो शी इज़ वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, जिसके पास देयर मस्ट बी मिनिमम लैंड जिसके लिए बनानी है। ये आप पॉलिटिकल लोग हैं, आपको पता नहीं फेस करते कि ये कॉलोनी बना के 2 एकड़ में वो चले जाए, ना सीवरेज है, ना वाटर सप्लाई है, ना कुछ चले जाए। और आपकी जो प्राइम लैंड है, आगे जिम्मेदार मर गया है। शेर खान साहब मेरे भाई हैं, मोहतरम है, अब नहीं ये बोलते हैं जिम्मेदारों के हाथ में, पहले बोलते थे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा इजाज़त होता है सर, ये ज़िम्मेदारों का मसला नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मसला है और हम सब शहरियों का मसला है। मेरी बहन ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि यहाँ शुतर बेमहार की तरह जो है ना वो कॉलोनियाँ बन रही हैं, जिसका जहाँ दिल करता है ना वो 5 एकड़ 10 एकड़ काट के वहाँ शुरू कर देता है। एक तो मेहरबानी करें, आप हाउसिंग की बात कर रहे थे, असल जो ज़मीन अलॉट करनी है सारा कुछ करना तो ये यही करते हैं अपना रेवेन्यू वाले ही। तो मेहरबानी करें ये जो चीज़ें हैं ना कम अज़ कम एक तो इर्द गिर्द
100 एकड़ पड़ा होता है, बीच में जाके 5 एकड़ की लिया और जनाब वहाँ कॉलोनी काट दी, बेच के चले गए। बेचारे लोग वहाँ ना सीवरेज ना कोई उनकी जो बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं है। तो मेहरबानी करें, अगर लोगों को लूटना है कॉलोनीज वालों ने तो वो किसी ढंग से लूटें। वो लूट के चले जाते हैं, फिर होता कोई नहीं, उनका पुरसाने हाल बेचारों का कोई नहीं है। मेरे अपने शहर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं मैंने जहाँ देखा है कि बेचारों को सीवरेज का मसला है जी, वो क्या हुआ जी, बेच के चले गए हैं जी, अब वो पूछते नहीं है। तो एक चीज़ का पाबंद हमें इस फोरम पे इनको करना चाहिए कि अगर कोई लैंड दे रहा है और बेच रहा है तो उसकी लोगों की सहूलत का प्लीज़ वो ख्याल करो। ये मैं आपको एक बात गुजारिश करूं सर आपकी इजाज़त से, यकीन करें ये बहुत बड़ा अलमिया है जो हम लोग सारे फेस कर रहे हैं। लोगों की जाके देखें तो सही, जो बेचारे ले लेते हैं जी, बड़ा सस्ता मिल गया जी, लाख रुपए मरला मिल गया, 1.5 लाख, वो बेचारे ले के बैठ गए। अच्छा वो तो वो कहते हैं ना, जहाँ लालची हूँ ठग भूखे नहीं मरते, वो ठग जो है ना वो करके चला जाता है बेचारा। वो कहता है ज़मीन सस्ती मिल गई मुझे, लाख रुपए मरला। आज का लाख रुपए मरला भी बड़ी गनीमत है जी। अच्छा जब वो पीछे होता कुछ नहीं, उसने कुछ ऊपर पैसे नहीं लगाए होते, तो ये इसके लिए ज़रा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी जनाब चेयरमैन, मैं आपकी इजाज़त से कहना चाहूँगी कि ये जो कॉलोनीज़ की हाउसिंग कॉलोनीज़ की बात हो रही है, उसमें सबसे बड़ी बात है डीसी साहब के एनओसी के बगैर कोई कॉलोनी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बनती नहीं है। तो डीसी साहब विदाउट जो है सारी इन चीज़ों की क्लैरिफिकेशन के कैसे एनओसी दे देते हैं जिस पर वो कॉलोनी बनती है और वो लोगों को बेची जाती है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही बाकायदा ये कॉलोनीज होती भी नहीं है। ये तो बस वो घर बेच के मोहल्ला बना लिया या एक बस्ती बना ली, उसमें से कर लिया। रेजिडेंशियल जो हमारे अर्बन रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ ये इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, अब तो थोड़ा सा मॉडर्न हो गए हैं ये लोग। कुछ थोड़े से लोग मिलकर कोई रकबा खरीदते हैं और उसके बाद रहमान गार्डन्स बना देते हैं या कभी कुछ और नाम से बाकायदा ये बनाते हैं, उसके बाउंड्री भी बनाते हैं, लेकिन कोई सीवरेज नहीं होता उसका, कोई इलेक्ट्रिफिकेशन कुछ भी नहीं होता। मेरे अपने हल्के कमालिया में इस तरह की बहुत सारी कॉलोनीज, मैं हैरान होती हूँ कि इनके एनओसीज कैसे बन जाते हैं, कैसे मिलते हैं और ये किस तरह से इन लोगों को इस तरह से करें। इसमें मेरा ख्याल है कि सब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। मतलब ये नोट फरमा लें डायरेक्शन पीएससी के फोरम से कि एक पॉलिसी बीओआर को बैठ के बनानी चाहिए विद रिगार्ड्स टू डेवलप ये सोसाइटीज़ जो है डेवलपर जो होते हैं, जो कन्वर्जन ऑफ लैंड है, कन्वर्जन ऑफ लैंड जिस तरह आप ये अलाउ करते हैं उसको इनको कहना जो उसमें सर द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अभी इन्होंने हाउसिंग का चेयरमैन साहब ने बात की है, ए इशू वाज रेज्ड इन मीटिंग। In my constituency, there are 21 unauthorized colonies. 21. This is according to the statement of the Faisalabad Development Authority. The chairman sahab had given a direction to come up with a well-prepared के जी इसका क्या हुआ है. They were given 1 month's time. 3 माह हो गए, उसका जवाब ही नहीं आया. 19 तो आ रहा है. It should not be कि आमदन निश्चितन गुफ्तन बर्खास्तन. मतलब you should come up with some result to us. Next month housing को ले आए. सर हाँ सर डायरेक्शन में दे रहा था 1 मिनट के आप ये नोट फरमा लें कि जहाँ पर तो डिप्टी कमिश्नर्स के पास आती है फॉर अप्रूवल, वो भी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि एक मैकेनिज्म तरतीब दें कि कौन सी जगह सूटेबल है और वो ये चीज़ें चेक्स जो हैं वो पूरे कर लें। और जो जहाँ पर वो अप्रूवल के बगैर बना लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, उसके जो इंतकाल हो जाते हैं एक मरले के बाद। अब ये देखें कि 5 मुरब्बे की या 10 मुरब्बे का एक लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, उसके अंदर जब 1 मरले या 5 मरले की इंतकाल हो रहे होते हैं तो उस पर कुछ चेक होना चाहिए कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या बन रहा है वहाँ पर। तो ये अगर पटवारी हजरात को भी बता दें कि भाई ये भी अप्रूवल ले डिप्टी कमिश्नर से, तो फिर ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा। हम इसको एक चैनल पे ले आएंगे। नहीं मतलब एज इन जी सर, मैं कोई पॉलिसी ऐसी बनाए कि ये इलीगल सोसाइटीज़ ना बने। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हम इसको अब अर्बन और अर्बन प्लानिंग तो हो जाती है, रूरल प्लानिंग कोई नहीं है, तो रूरल प्लानिंग में भी हमें काम करना चाहिए। डायरेक्शन नोटेड सर। मैं इसमें सबमिशन ये करता हूँ कि ऑलरेडी जितनी भी ये डिस्कशन हुई है, इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ अ लॉ एंड पॉलिसीज़। इट इज़ अ मैटर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो
इम्प्लीमेंटेशन में ये है, जिस तरह अब रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से ज़्यादा ये लोकल गवर्नमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट, ये दो, जिस तरह आपने अभी फरमाया था सर, ये दो डिपार्टमेंट्स इसको डील करते हैं। रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ जो बनती हैं, कार्व आउट होती हैं, उनके नक्शे पास करना, उसका सारा वो करना, वो उसमें आता है। डीसी साहिबान सर्टेनली दे आर हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जो लोकल गवर्नमेंट को भी देखते हैं, हाउसिंग को भी देखते हैं, और जो कॉलोनीज़ डिपार्टमेंट है वो हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिर्फ कॉलोनी लैंड को डील करते हैं इस मैटर में। बाकी वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करते हैं थ्रू डायरेक्शन, जिस तरह आपने फरमाया कि डीसी साहबान जब भी इसकी अप्रूवल दें तो अपनी डीपीडीसी में या जिस लेवल पर भी अप्रूवल देते हैं, इन फैक्टर्स को इंश्योर करें कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे। जनाब, ये डिप्टी कमिश्नर होता है, ही इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एम आई राइट? ये तत्ते में कौन पास करते हैं? कॉलोनी इज डिफरेंट, जो एक्ट के तहत गवर्न होता है। मतलब हम मुझसे लॉ ग्रेजुएट, मुझे 50 साल हो गए लॉ किए सर। मतलब कि डोंट टीच मी लॉ। नहीं सर, नहीं। डिप्टी कमिश्नर इज अथॉरिटी टू इशू ऑल दिस ऑर्डर। डीसी के बगैर कोई चीज नहीं चलती, ना पटवारी के बगैर चलती। एडमिटेड दिस फैक्ट। तो फिर आप उसको जो गिव द पावर टू द डिप्टी कमिश्नर टू टेक नोटिस अगेंस्ट दोस कॉलोनीज, ये कैसे बन गई हैं? लोग फंस गए हैं, मर गए हैं। वो 2 कनाल का रकबा लेके, जैसे आसिफ साहब ने कहा है, वेयर दे नो। सर दिस इज व्हाट द डायरेक्शन विल बी पास्ड। ना पजेरो बहुत इन्होंने झूठन काम भी करन होते कोई। नेक्स्ट सर पेज नंबर 51 है सर, पैरा नंबर 1.4.4, नॉन रियलाइजेशन ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स ऑन परचेज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर ये जो भी प्रॉपर्टी परचेज होती है एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फाइनेंस एक्ट 2019, 1% टैक्स काटना है सर एज विदहोल्डिंग एजेंट फ्रॉम फाइलर्स और 2% फ्रॉम नॉन फाइलर्स। इसमें सर ये लेस रियलाइजेशन ऑफ टैक्स हुआ है, उसकी अमाउंट टोटल बनती है 185 मिलियन, और जो सर लेटेस्ट पोजीशन है इसकी वो रिकवरी हो चुकी है सर 3.5 मिलियन की, नॉट ड्यू है 13 मिलियन एंड 167 मिलियन इज स्टिल पेंडिंग। इसमें काफ़ी केसेस ऐसे हैं जिसमें महकमे ने बताया कि उन्होंने नोटिस इशू कर दिए हैं, लेकिन 6 साल का अर्सा साल हो गया जब से पैरे बने हैं, और इसमें जो 1% टैक्स जहाँ 2% करना था वहाँ ज़्यादा केसेस में 1% किया हुआ सर, ये इशू है। और रिकवरी भी नील है? नहीं सर, टोटल रिकवरी जो है ना सर वो 3.5 मिलियन हुई है जो हमने वेरीफाई की है। 3.5 मिलियन आपने वेरीफाई की है? जी, टोटल रिकवरी, और रिमेनिंग इज 167 मिलियन। स्टिक हो गया, डिस्कस हो गया डिपार्टमेंट्स? जी सर, डिस्कस हो गया प्री बीएससी में सर। ये क्लब पैरा है? क्लब पैरा है सर, इसमें टोटल हैं सर 82 पैराज हैं सर। तो डिपार्टमेंट आपने ये वर्किंग पेपर बनाया है, इस पे आपने अपने ऑफिसर्स को बड़े तकलीफ में डाला है, क्योंकि आप एक तो यूं करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको बाइफिकेट करते ताकि हम उनको जल्दी से निपटा भी लेते, क्योंकि अब एक पहले 3 होंगे लाहौर के रिगार्डिंग, फिर चौथा होगा रावलपिंडी, फिर साथ उकाड़ा है, फिर लाहौर आ जाता है, फिर मुल्तान है, फिर फैसलाबाद है, फिर मुल्तान है। तो इस तरह तो ये बड़ा इशू बन जाएगा। आपको भी ऑलरेडी ये इशू फेस हो रहा है? जी सर, बेसिकली हमने तो सर इसी सीक्वेंस में पैरे बनाए ना, तो उन्होंने किताब के सीक्वेंस में ये सारे पैरे लिए हैं, क्योंकि एक पैरा क्लब हो गए, डीपी बनाया, ये सारे पीडीपीज हैं। क्लब तो हो जाता जी, लेकिन उसको जरा बाइफिकेट तो कर देते बाय डिस्ट्रिक्ट्स। जी सर, बिल्कुल हो सकता था। उसमें ये था कि वही डीसी या वही लोग बैठते जिनका पैरा था, दे कुड हैव गॉन। अब नहीं, अब तो कैसे करेंगे, एक के बाद दूसरे बड़े हो जाएंगे। जी सर, ये कब करेंगे इसकी रिकवरी? जी सर, इसकी रिकवरी ग्रेजुअली हर डिप्टी कमिश्नर कर रहे हैं, और हमने जो रिकवरी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई है वो नोट डाउन भी करवाई है, वेरीफाई भी करवाई है। लास्टली सर ये कुछ रिकवरी ऐसी थी जो डीसी साहबान ने कल तक भी की है, वो ऑडिट ने अभी खुद भी बताया है कि वो क्योंकि अकाउंट्स ऑफिस से लेके भी दस्ती भी आए हुए हैं, लेकिन ये पेपर तैयार हो चुके थे इसलिए इनकॉर्पोरेट नहीं हुए। तो मैडम के साथ हमारी एट लेंथ इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी, वो हम फर्दर भी इसमें ऐड करवा देंगे। तो ये ग्रेजुअली ये हो रही है, हम इसको एनहांस कर रहे हैं सर। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कल तक ऑडिट आप इसको अपडेट कर लेंगे लिस्ट को? जी कर सकते हैं, अगर मेरे वेरीफाई करवा देंगे हम, अपडेट करके जो रिकवरी आई हुई है सर हम इनको आज वो सबमिट कर देंगे सर, जो अपडेटेड आई उसका अब हाँ, उसका जो अपडेटेड फॉर्म है इन रिकवरीज का वो कल तक ले आए। कल भी है ना डिपार्टमेंट? जी सर, कल भी है, परसों।
फॉर ऑल द 80 समथिंग होंगे यहाँ पे 81 जी 82 केसेस। ये 82 को ना आप यूं करें ना, बजाय सबके अलग अलग करने के 82 को आप क्लब किया हुआ जिस तरह उसकी टोटल देखें, जितनी रिकवरी हो गई है और जितनी रिकवरी रहती है उसको रखें, क्योंकि ये सारे क्लब्ड हैं तो हम 1 बाय 1 हर ऑफिसर से नहीं बात कर सकेंगे, तो आप उसको उसी तरह रखें जिस तरह परफॉर्मेंस ऑडिट में आप करते हैं। जी राइट सर। So next we should be 50. Sir, next page is 139. Oh, हाँ. सर ये पैरा है जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू भावलपुर और खानेवाल का सर। इसमें दिस इज पैरा इज रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ स्टेट लैंड फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर स्कीम्स विच वॉज पेंडिंग इन एग्रीकल्चर स्कीम्स। रिकवरेबल अमाउंट इज सर 142 मिलियन और सर अभी तक जो है ये रिकवरी पेंडिंग है, सारी पेंडिंग जी सर। 6,94,000 की रिकवरी वेरीफाइड है इसमें, बाकी सर पेंडिंग है। सर ये जो आफ्टर पीपीएससी हमने वेरीफाई की है टोटल 1.78 मिलियन की सर वेरीफाई हो गई रिकवरी इसमें से। 1.78 मिलियन सर। टोटल 142 में से 141.10 मिलियन सर पेंडिंग है। From only one district? रिकवरी है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर। भावलपुर सर, ये भावलपुर और खानेवाल की है सर। 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना? 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी 2 की है सर, 2 की। क्या प्री पीएससी में क्या कहा इन्होंने? प्री पीएससी क्या कह रही है? डीसी साहब एक रैशनली बता दें कि मतलब हम कितनी जल्दी इसको रिकवर कर सकते हैं ताकि हम कुछ टाइम बाउंड कर लें इसको। सर इसमें हमने 3 pronged स्ट्रेटजी अपनाई है। जो अमाउंट रिकवर हो सकती थी सर वो हमने रिकवर करा दी है और वेरीफाई भी करा दी है। सेकेंडली जो हमारा खैरपुर टामे वाली में कुछ ये कॉलोनी ब्रांच का रिकॉर्ड गुम हो गया था, जो कंसर्न रिस्पॉन्सिबल बंदा था उसको हमने रिमूवल फ्रॉम सर्विस की पनिशमेंट भी दे दी है। 3rd नंबर पे सर जो जिन लोगों को आगे लैंड लीज हुई थी और उन्होंने रिकवरी नहीं कराई, उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनकी अटैचमेंट के भी हमने ऑर्डर कर दिए हैं। जब तक वो पैसे अब रिकवर नहीं करेंगे उनकी प्रॉपर्टी अनब्लॉक नहीं होगी। 4थली जो करंट हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट भी हमने पीडा की इंक्वायरी शुरू कर दी है। वो कौन से? सर ये हमारे पास डिफरेंट पैराज हैं, तो लाइक देयर आर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। पटवारी किस लेवल के हैं? पटवारी है? पटवारी सर, जिनकी आपने प्रॉपर्टीज अटैचमेंट करवाई है फॉर रिकवरी, या गो अहेड, उनकी लीज रेवोकेशन भी होगी? जी वो भी होगी सर। का सर सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है अगर, बट इट्स अ ह्यूज रिकॉर्ड, तो वी आर होपफुल कि प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद इसकी जो रिकवरी की पोजीशन है वो हमारी बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज इससे पहले सर नहीं हो रहा था इस तरह से, सिर्फ खाली नोटिस दिए जा रहे होते थे, तो खाली नोटिस पे कोई कंप्लायंस उस तरह से नहीं होती थी सर। ठीक है, ये अच्छी पॉलिसी है, इसको अफेक्ट करें। डीसी खानेवाल का क्या इस पे टेक है? डीसी साहब इन योर डिस्ट्रिक्ट 4 केसेस हैं, नहीं 4 नहीं, 184 and 4। सर 10 केसेस हैं टोटल।
इसमें से सर एक केस जो है वो एग्री ग्रेजुएट वाला केस है सर। 2010 के अंदर इनको 12.5 कनाल दिए गए थे, 1/4 हमने उनसे ले लिया था, रिमेनिंग के ऊपर फिर पॉलिसी आनी थी कि हमने उनसे 3/4 लेने हैं या नहीं। तो एक केस के अंदर तो वी आर अवेटिंग पॉलिसी डिसीजन, इनसे रिकवरी करनी है कि नहीं। बाकी सर जो 8 थे उनको हमने रिज्यूम कर दिया है और आगे ऑक्शन में डाल दिया है, और जो जिनके पास पहले थी उनसे सर हमने रिकवरी स्टार्ट की है। और सर हमारे पास 2,94,000 अप्रॉक्सीमेटली की रिकवरी है भी इस वक्त। तो सर बाकी भी हम साथ वो आप वेरीफाई करवा दें ऑडिट को। बाकी आउटस्टैंडिंग कितनी है आपकी? सॉरी सर, टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है आपकी? सर टोटल आउटस्टैंडिंग से टोटल थी हमारी 40 मिलियन, तो उसमें से सर अभी 2,94,000 हुई है रिकवरी। तो आउटस्टैंडिंग इज सर 3.8 मिलियन। डीसी साहब, ये जो पॉलिसी आपने बनाई है ये आपने खुद बनाई है फॉर योर डिस्ट्रिक्ट या ये ऊपर से आपको? सर ये लास्ट हमारी BOR में मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिस्कस हुआ था कि जो ऑफिशियल्स होंगे उनके अगेंस्ट हम पीडा की कार्रवाई करेंगे, और दूसरा ये कि रिकवरी करने के लिए हम नोटिस वगैरह इशू करेंगे, लेकिन जो अटैच करने वाली है वो हमने फिर अपने लेवल पे खुद ही की है। सर यही पॉलिसी होनी चाहिए फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर ये इशू आ रहा है, वो भी यही पॉलिसी अप्लाई करे ताकि रिकवरी तो स्टार्ट होए। डेफर्ड अगला नेक्स्ट सर पेज नंबर 149 है। सर इसमें 47 रेवेन्यू ऑफिसेज हैं और टोटल 2030 केसेस हैं सर। इसमें सर ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू 236C ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1% ऑफ टैक्स वाज टू बी विदहेल्ड फ्रॉम फाइलर और 2% फ्रॉम नॉन फाइलर। सर इसमें भी लेस रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू और टैक्स की मद में हुआ है, जिसकी टोटल अमाउंट बनती है 109 मिलियन। और सर इसमें से रिमेनिंग है 101 मिलियन और तकरीबन 8 मिलियन वेरीफाई हो गई है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी एंड नॉट ड्यू। जी 149 मैडम। 8 मिलियन हो गई है लेकिन फिर भी 101 मिलियन रह गई है। जी सर। जी सर। सर इसमें तमाम हेड्स में रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें रिकवर्ड अमाउंट जो है बाकायदा डिटेल अमाउंट वेरीफाइड इस कॉलम में मेंशन्ड है सर। तो जिनके अगेंस्ट रिकवरी बिल्कुल नहीं हुई है, हमने उनकी लिस्ट जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की थी सीक कर ली हैं और उनको हम शो काज नोटिस दिलवाने लगे हैं सर। ये 3 दिन पहले जब प्री PAC हुई थी उसमें ये डिसीजन हुआ था कि हम उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट कर रहे हैं सर। जिनसे रिकवरी ये वाला जो FBR का टैक्स आप कलेक्ट करते हैं सर, ये FBR के चलान उनका बनता है कि आपका बनता है? ये FBR का होता है सर। FBR का होता है? जी हाँ। तो ये उस प्रीवियस केस में इस तरह क्यों नहीं हो सकता? सर प्रीवियस केस में ये था जो वो न्यू इंट्रोडक्शन थी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, मैंने पहले भी अर्ज़ की, उस वक्त इंटीमेट नहीं हुआ था, इसलिए वो रिकवरी नहीं हुई थी 2019। ये तो बहुत पुरानी, उससे बहुत पुरानी रिकवरी हो रही है, तो इसलिए ये कंटिन्यूड प्रोसेस है। और उन्होंने बाकायदा इसमें हेड्स प्रोवाइड किए हुए हैं जो वो डिपॉजिट करते हैं अमाउंट्स को। ये कैपिटल गेन जो है ये भी तो बाद ये भी तो एक टाइम पे अबॉलिश हो गया था और दोबारा रीइंट्रोड्यूस हुआ ना। जी सर, उसने ना उन्होंने उसमें वो जो 5% है उसका हेड नहीं दिया हुआ पेनल्टी का, वो इसलिए उन्होंने खुद डिसाइड करना है कि वो खुद पेनल्टी वसूल करेंगे या हम किसी हेड में जमा कराएंगे। ये दिस इज़ टू बी डिसाइडेड, और वो जिस अगर डिसाइड कर लेंगे, मैंने अर्ज़ किया कि हम विद इन फोर्टनाइट इसको रिजॉल्व या 1 मंथ सर ने जो अभी टाइम दिया है उसमें रिजॉल्व कर लेंगे उस इशू को हम। ठीक है। इसमें सर 8.57 मिलियन जो है वो रिकवर हो चुका है और बाकी ग्रेजुअली वी आर डूइंग इट सर इंशाल्लाह। इनकरेजिंग है ये कि टू नो कि आपने
मिलियन की रिकवरी। सर थैंक यू वेरी मच सर। कल हम बुला रहे हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को सर, तो अब मैं चाहता हूँ कि एडीसी लाहौर बैठे हैं, आप भी कल आए, हम इधर बैठ के उस कल स्पोर्ट्स वाले जो खिलाफी स्टेडियम वाला पैर है ना, उसको हम इधर ही डिस्कस करेंगे। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। कल तक पेंड कर देते हैं मीटिंग को। बाकी खत्म करना है क्या दोबारा आना